Hello student, write a general characteristic of a equilibria involving a physical process, right? तो physical process में जो equilibrium होता है उसकी हमें general characteristic discuss करनी है, right? तो for the physical process following characteristic are common to the system at a equilibrium. तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, राइट? इफ अगर सिस्टम ओपन है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, राइट? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ सिस्टम इज क्लोज, राइट? एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट? सेकंड, बोथ द ऑपोजिट प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, राइट? एंड देर इज अ डायनेमिक बट अ स्टेबल कंडीशन. डायनेमिक मतलब कि जो प्रोसेस है, राइट, इक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस है ना, अकर एट द सेम रेट, राइट? मतलब कि वो सेम रेट पे होती है और वो डायनेमिक है, प्रोसेस चालू की चालू ही रहती है, राइट? लेकिन वो स्टेबल कंडीशन में है. स्टेबल कंडीशन मीन्स व्हाट? तो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा, राइट, एट अ इक्विलिब्रियम टाइम. ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameters at a given temperature. The magnitude of such quantity at any stage indicates the extent to which the physical process has proceeded before a reach equilibrium. Okay, तो ये थी general characteristic, right, of a equilibrium involved in a physical process. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ जनरल रिएक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए प्लस बी गिव अ सी प्लस डी, राइट? पहले एक बार हम लोग समझ रहे, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, राइट? ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, राइट? तो हियर ए प्लस बी आर अवर रिएक्टेंट एंड सी प्लस डी आर अवर प्रोडक्ट, राइट? तो at the initial state we have only reactant, right, A and B, right? So concentration of reactant is maximum at the initial state, right? And at the initial stage we have a no product, right? Because only reactant ही हमारे पास present है, C plus D, मतलब कि product are not present at the initial state, right? मतलब कि products are zero, right? Therefore, after some times, A plus B react with each other and converted into C plus D. Sometimes के बाद क्या होगा? A plus B react होंगे और converted into C plus D, right? Then A plus B हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा? लेस होगा. एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? बिकॉज ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी, राइट? एक टाइम ऐसा आएगा कि ए प्लस बी और सी प्लस डी, राइट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा और फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, राइट? Right? Why? Because A plus B converted into C plus D and at the same time C plus D means our product converted into reactant, right? तो देखो, analogous to the physical system, chemical reaction also attain a state of a equilibrium, right? मतलब कि जो chemical reaction है उसमें भी equilibrium का stage आता है. This reaction can occur both in a forward and backward direction. Forward मतलब कि reactant to product and backward direction मतलब कि product to reactant. When the rate of the forward and reverse reaction become equal, मतलब कि जब दोनों reaction का rate equal हो जाता है, the concentration of reactant and product remain constant. वो same रहती है, right? वो change नहीं होता है, वो constant रह जाता है. And this is the stage of a chemical equilibrium. और वो stage को हम लोग क्या बोलते हैं? Chemical equilibrium. Chemical equilibrium is dynamic in nature. It consists of a forward reaction in which the reactant give a product and reverse reaction in which product give the original reactant, right? मतलब कि वो dynamic है in nature में, वो process चालू की चालू रहती है और reactant converted into product in a forward reaction and reverse reaction में क्या होगा? Product give us the original reactant, right? Let us take a normal reversible reaction A plus B converted into C plus D.
At the beginning the solution of मतलब कि at the initial state, at the starting stage we have only a plus b, right, is a more, right. With the passage of time मतलब कि at a time interval there is a accumulation of a product मतलब कि formation of product c plus d and depletion of a reactant मतलब कि less हो रहा है reactant, right, a and b. देखो यहाँ पे फिगर में है, राइट. स्टार्टिंग में वी हैव ए प्लस बी मैक्सिमम स्टेज, आफ्टर सम टाइम्स ए प्लस बी डिक्रीज हो गए. स्टार्टिंग में वी हैव नो प्रोडक्ट एंड आफ्टर सम टाइम्स प्रोडक्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, वो सेम रहेगा, राइट, सेम हो जाएगा. So these lead to a decreasing in the rate of forward reaction and an increasing in the rate of a reverse reaction. After sometimes the two reactant occur at the same rate, मतलब कि forward to reverse and backward reaction, right. Both reaction का rate क्या हो जाएगा, same, and the system reach a state of equilibrium. We can get a equilibrium starting the reaction from any of the direction. We can also get equilibrium starting from C and D, right. चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसे पढ़ेंगे, राइट. तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट. तो हियर वी हैव टू रिएक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट. तो यू नो दैट हेबर प्रोसेस, राइट. हेबर प्रोसेस मतलब N2 रिएक्ट विथ H2 टू गिव NH3, राइट. हियर 2N2 मतलब कि यहाँ पे 2 आएगा तो 2 मोल एमोनिया प्रोड्यूस, हाइड्रोजन के नंबर 3 इंटू 2 मतलब कि 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2, राइट, मतलब कि 6 हाइड्रोजन हो गए, राइट. हियर 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्टेड इंटू 2 मोल ऑफ एमोनिया, राइट. मतलब कि proportion of nitrogen is less compared to proportion of hydrogen, right. तो यहाँ पे फिगर में देखो आपको हाइड्रोजन लेस है, राइट. हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है कंपेयर टू नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट, वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट. एट अ इनिशियल स्टेट वी हैव अ नो NH3, राइट, मतलब एमोनिया हमारे पास नहीं है. आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन धीरे धीरे लेस हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन भी धीरे धीरे लेस हो जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, कन्वर्टेड इनटू एमोनिया, राइट. और धीरे धीरे देखो एमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस होगा, राइट. और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, वो सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट. मतलब कि वो अनचेंज रहेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस ऑफ ammonia. The chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by a Haber process. In a series of experiments, Haber started with a known amount of dinitrogen and dihydrogen maintained at a high temperature and pressure and at a regular interval determine the amount of ammonia present, right. और आफ्टर सम टाइम के बाद वो लोग क्या करते, उन्होंने क्या किया, तो कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन की अमाउंट को क्या किया, उन्होंने चेक किया कि कितने प्रपोर्शन में यूज़ हुए और कितने अनयूज है हमारे पास, राइट. ही वो सक्सेसफुल इन अ डिटरमाइन ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड, मतलब कि जो डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन अनरिएक्टेड है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी उसका कॉन्सेंट्रेशन भी उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया, डिटरमाइन किया, राइट. अब वो ये देखो हमको फिगर में कुछ बताया है, राइट, कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड एमोनिया, राइट. आफ्टर समटाइम्स रिएक्टेंट प्रेजेंट स्टिल द कंपोजिशन इन अ मिक्सचर रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब कि आफ्टर समटाइम्स क्या हो जाता है कि वो जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन, जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट. बिकॉज जितने H2 और N2 कन्वर्ट हो गए एमोनिया में, उतने ही एमोनिया में से क्या फॉर्म हो गए, N2 एंड H2. कब, तो कि एट अ इक्विलिब्रियम, राइट. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट डज नॉट चेंज एंड इट इज़ अ इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब कि वो चेंज नहीं हो गए, उसकी अमाउंट चेंज नहीं होगी, तो वो कौन सा स्टेज होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज होगा, राइट. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ साइड
whether we started reaction by taking H2 and N2 and get a NH3, राइट. मतलब क्या होगा, तो कि इक्विलिब्रियम बोथ साइड से होगा. व्हेन हम लोग H2 और N2 एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे तो NH3 फॉर्म होगा, राइट. बट इफ वी यूज NH3 एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, द डिकम्पोजिशन इट इन N2 एंड H2, तो उस टाइम पे NH3 डिकम्पोज होगा एंड H2 एंड N2 में कन्वर्ट होगा, राइट. तो वो क्या बोला है कि यहाँ पे देखो आपको रिएक्शन दी हुई है, स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रीच एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि N2 एंड H2 कन्वर्टेड इनटू NH3, राइट. अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं तो NH3 का डिकम्पोजिशन होगा और NH3 कन्वर्टेड इनटू N2 एंड H2, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट. हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब कि HI. अब HI किस में से फॉर्म होगा, तो कि H2 प्लस I2 रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस HI, राइट. हियर H2 एंड I2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन एंड 2 आयोडीन, देयरफॉर 2 HI इज प्रोड्यूस्ड, राइट. If we start with the equal initial concentration of H2 and I2, the reaction proceeds in the forward direction, right. मतलब कि सेम जैसे हम लोगों ने आगे के एग्जाम्पल में किया कि हमारे पास इनिशियल स्टेट में ओनली H2 और I2 ही प्रेजेंट हो गए, राइट. तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी, राइट. एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 डिक्रीज एंड एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज इंक्रीज, राइट. After some times concentration of all मतलब कि H2, I2 and HI become constant, right, and it reach to equilibrium, right. मतलब कि sometimes बाद क्या होगा कि H2 और I2 का और HI सबका concentration क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वो constant रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, equilibrium बोलेंगे, राइट. देखो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है कि H2 plus I2 gives 2 HI. At the same temperature we can take only HI. अब हम लोग उससे अपोजिट रिएक्शन करते हैं कि अगर हमारे पास ओनली HI होगा तो स्टार्टिंग में हमारे पास ओनली HI रहेगा, राइट. देन रिएक्शन प्रोड्यूस होगी इन अ रिवर्स डायरेक्शन, मतलब कि HI में से क्या फॉर्म होगा, तो कि H2 एंड I2, राइट. तो आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI विल डिक्रीज एंड H2 and I2 will increase, right. And after some times concentration of all मतलब कि HI, H2, I2 are which reach constant, right. मतलब कि सब constant हो जाएगी एंड इक्विलिब्रियम सिचुएशन फॉर्म, और इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉर्म होगा, राइट. देखो यहाँ पे आप लोगों को फिगर दी हुई है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम एनी ऑफ द साइड. अब यहाँ पे ना दो फिगर को मिक्स करके एक फिगर बनाई है, मतलब कि ये हाफ पोर्शन है, राइट. यहाँ से हाफ कर दे, पहले हम लोग यहाँ से हाफ, ये आप लोग भूल जाओ, राइट. तो पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन जाते हैं, राइट. मतलब कि वी हैव स्टार्टिंग मटेरियल H2 एंड I2 एंड नो प्रोडक्ट, मतलब कि HI हमारे पास 0 है, राइट. आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 डिक्रीज होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI विल इंक्रीज, राइट. प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगी, राइट. अब हम लोग ये रिएक्शन भूल जाते हैं, रिवर्स रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास, राइट, ओनली HI है, तो उस टाइम पे H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 है, राइट. आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI विल डिक्रीज, धीरे धीरे ऐसा HI का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 विल इंक्रीज, राइट. एंड इक्विलिब्रियम बोथ आर सेम. इन स्टार्टिंग H2 एंड I2 आर react not products, right. At equilibrium all are components, right. मतलब कि इक्विलिब्रियम पे हमें सब मिलेगा, H2, I2, HI. If in a forward and backward reaction at a defined temperature same रहना चाहिए, right. The number of atoms of H and I in constant volume be same, then both will give equilibrium mixture, right. अगर सब सेम रहेगा, टेम्परेचर भी डिफाइनाइट रहेगा, तो हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम विद अ सूटेबल रिएक्शन ऑफ अ एग्जाम्पल, राइट. तो सूटेबल एग्जाम्पल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कि डायनेमिक नेचर
ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। अब तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसके एग्जाम्पल पढ़े, और लास्ट हम लोग क्या करेंगे तो कि उसका डायनेमिक नेचर के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो डायनेमिक इन अ नेचर एंड दिस फैक्ट इज प्रूव बाय अ synthesis of ammonia by use of H2 and D2, right। H2 मतलब हाइड्रोजन एंड D2 मतलब कि ड्यूटेरियम, isotopes of hydrogen. After equilibrium is attained, these two mixture H2 and N2 and NH3 and D2, N2 and ND3 are mixed together, right। मतलब कि H2 and N2 converted into NH3 and D2 and N2 converted into ND3. Later, when the mixture is analyzed, it is found that the concentration of ammonia is just the same as the before. मतलब कि जो ammonia produce हो रहा है ना, उसका concentration same रहेगा, right? When the mixture is analyzed by a mass spectroscopy, right? मतलब कि हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम लोग उस मिक्सचर को एनालाइज करेंगे तो क्या फाउंड होगा, तो कि इट इज़ फाउंड दैट एमोनिया एंड ऑल ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म्स ऑफ एमोनिया एंड डाईहाइड्रोजन एंड इट्स ड्यूटेरियम फॉर्म्स आर प्रेजेंट, राइट। मतलब कि एमोनिया फॉर्म्स मतलब कि NH3 है, NH3 अटैच विथ ड्यूटेरियम, मतलब कि वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, मतलब कि क्या फॉर्म होगा, NH2D फॉर्म होगा, देन अदर वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस, देन NHD2 इज फॉर्म, राइट। एंड हमारे पास ऑलरेडी NH3 तो प्रेजेंट ही है, राइट। देन क्या बोला है, तो कि एन डाईहाइड्रोजन एंड इट्स ड्यूटेरियम फॉर्म मतलब कि H2 हाइड्रोजन अटैच विद ड्यूटेरियम, तो HD एंड D2 तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। तो वो मिक्सचर में जब हम लोग ये दो ये और ये सबको मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये सब हो जाएंगे, राइट। ये सबका हमें मिक्सचर मिलेगा। सो इट इज़ क्लियर दैट scrambling of H and D atoms in the molecule must result from a contribution of the forward and reverse reaction in the mixture. Use of isotopes in the formation of ammonia clearly indicate that chemical reaction reaches state of a dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reaction are equal and there is a no change in a composition. उसके composition में कोई भी change नहीं होगा if हम लोग isotopes use करें तो। Okay, thank you.